Hi friends, welcome on your PDA panel discussion, and our today's discussion is related to the job of State Bank of India for electrical engineers, assistant manager, 2 years job experience, and this particular job profile has some requirements. State Bank of India of late is recruiting lot of technocrats, lot of engineers. Earlier it was computer science, IT domains. Now it is civil engineer, electrical engineer. Now how to prepare for the interview, what needs you need to focus, and how your PD will help you. This our discussion is related to that. So before I go to my expert mentors for electrical engineering, let me tell you something, friends, about the requirement of State Bank of India. You must have seen the requirements, roles and responsibilities of State Bank of India. They start with requirement of project management. Like you should have knowledge about the planning and control, execution part of project. And when we say project, largely they are construction project. It is not that construction project means civil engineer. It is like as electrical engineer, whenever you have to do a construction, whenever there is a building, it is not only civil engineer. Electrical engineer comes into play. When we talk about the smart buildings, Dushyant sir will talk about that. So what are the roles and responsibilities? Now friends, you need to prepare really good for project phases of the project management. Typically, like for construction management, what is the role of electrical engineer in executing very good construction project? How to deliver it, what are the nitty-gritty of the construction project, then how to get in touch with the supplier, vendor, contractors, how to float the tender, what are the nitty-gritties of the tenders, and how to negotiate, how to resolve the conflicts. And then they are also talking about implementation of green initiatives into the buildings. Vigilance is also one of the domains. So as engineer, as assistant manager, how you will deal with the vigilance issues, those things are also there. Now we will be discussing about that, but before we go, let me tell you about the learning content your PD is providing you. There is a 70-80 page of document related to roles and responsibilities, along with questions which can be asked from roles and responsibility and your job background. Plus State Bank of India as organization. There's a document of that. You should know about the State Bank of India, who is the chairman of that, how many branches are there, what is the turnover, what are the various know your customer kind of things, DigiLockers, those kind of things were recently asked in the interviews. You should have knowledge about that. I presume that many of you do not do project management in your undergrad curriculum course. Your PDA is a platform which will provide you project management, phases of the project management kind of learning content on our panel. So you need not to worry about that. So friends, with this now I initiate my discussion with the mentors. So Ravi sir, first over to you. We have seen सारे का सारा जो इनकी रिक्वायरमेंट्स है, इंजीनियर्स की 2 साल का जॉब एक्सपीरियंस है, क्या पूछा जाएगा इनसे और कैसे इनको तैयारी करनी है सर? सबसे पहले आपका इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के लिए क्या आपका जो है इक्विपमेंट नीड होगा किसी प्रोजेक्ट को आपका कंप्लीट करने के लिए, राइट। उससे रिलेटेड जैसे अगर आपका देखें तो हमें आपका चाहिए यूपीएस, मोटर, जनरेटर, स्टार्टर, प्रोटेक्टिंग ऑफ आपका प्रोटेक्शन आपका डिवाइसेस या मेंटेनेंस आपका इक्विपमेंट, ये आपका यूज करना है। जैसे स्विच गेयर आपका हम लोग रिले, ये आपका हम लोग पढ़ते हैं। ये सारे आपका इक्विपमेंट के बारे में आपको बेसिक्स पता होना चाहिए। इसके कौन कौन से कंपोनेंट है ये आपका पता होना चाहिए। अब इसके बाद इसको हम लोग मेंटेन कैसे करेंगे, कंट्रोल कैसे आपका करेंगे और इंस्टॉल आपका कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेसिक अगर आपका सब्जेक्ट इसमें हमने कहें तो हमें इलेक्ट्रिकल मशीन के जो आपका बेसिक्स हैं वो सारे आपका यानी कौन कौन से इक्विपमेंट आपका जो यूज होगा इसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ और आपका जो इक्विपमेंट जो आपका यूज हो रहा है उसको हम लोग आपका जैसे इसमें आपका कहा है एनर्जी सेविंग डिवाइस यानी पावर फैक्टर करेक्शन, जब तक हम नहीं करेंगे तब तक आपका कैसे आपका एनर्जी सेव करेंगे। तो वहां पर पावर फैक्टर करेक्टिंग डिवाइस आपका कौन कौन से यूज करेंगे, कहां यूज करेंगे, यानी ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर में आपको ये ध्यान रखना है मेंटेनेंस, इंस्टॉलेशन और कंट्रोल, प्रोटेक्शन, डिफरेंट आपका जो है डिवाइसेस व्हिच इज यूज्ड इन आपका प्रोजेक्ट। वंडरफुल। रवि सर, वहां पे क्लियरली मेंशन्ड है मेंटेनेंस ऑफ बैंक प्रॉपर्टीज। अब जब इसको मैं देखता हूं एज मैकेनिकल इंजीनियर तो मेंटेनेंस उसमें भी आता है, एज सिविल इंजीनियर मेंटेनेंस उसमें भी आता है, एज इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आप बता रहे हैं मेंटेनेंस उसमें भी है। तो मेंटेनेंस ऑफ बैंक प्रॉपर्टीज, इससे इंडिविजुअल क्या समझे और उसकी डायरेक्शन ऑफ प्रिपरेशन कैसे जाए?
जैसे आपका मेंटेनेंस, अगर मेरे इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपका देखें तो हमें मेंटेनेंस किस चीज के लिए मिलेगा? जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आपका यूज हो रहे हैं, आपका जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बिल्डिंग आपका जो भी है या जहां भी उसका प्रोजेक्ट आपका चल रहा है, तो उस अप्लायंसेज को जैसे मोटर, जनरेटर, लिफ्ट, स्टार्टर, प्रोटेक्टिव, अब मान लीजिए कि अप्लायंसेज हमें आपका आजकल तो जितने भी आपका अप्लायंसेज है वो सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी पर चल रहा है, तो उसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? प्रोटेक्शन। तो आपको प्रोटेक्शन पर, क्योंकि हम लोग आपका आए दिन देखते हैं कि कहीं आग लग गया, तो हमें आपका ये भी ध्यान रखना है कि जो उसके आपका जो संपत्ति है वो आपका जो है डिस्ट्रॉय ना हो। सही बात है। इसमें प्रोटेक्शन यानी आप इस सारे जो भी इक्विपमेंट यूज होगा इसका आपको पूरी तरह से डिटेल आपका जानना होगा कि हम इसको कैसे मेंटेन, इंस्टॉल, कंट्रोल, प्रोटेक्ट ये आपका करें। तो बेसिकली इन्होंने जैसे टॉपिक में ये भी लिखा है प्रोक्योरमेंट एंड परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट इंक्लूडिंग एएमसीज। तो प्रोक्योरमेंट एंड परचेज ऑफ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट मतलब अगर आपको इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट कौन से बैंक में यूज होने हैं ये पता लग जाए तो प्रोक्योरमेंट एंड परचेज भी कवर कर रहे हैं आप और साथ में मेंटेनेंस भी कवर कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे को लगता है सारा इनको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। ये आपका जो है प्रोक्योरमेंट है कि कोई अगर प्रोजेक्ट आपका जो है आपको दिया गया है कि इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है, तो उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए कौन कौन से अप्लायंसेस की नीड होगी, तो उसके अकॉर्डिंग आप प्रोक्योर करेंगे, कहां से प्रोक्योर करेंगे, कितना प्राइस में प्रोक्योर करेंगे, ये सारे आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप ये सारी चीज आपका ऊपर आपका जो है प्रिपेयर करके तब आप एक कंसर्न अथॉरिटी के पास उसको फॉरवर्ड करेंगे जहां से आपको परमिशन मिलेगा। वेरी नाइस। सो मैं जो देख पा रहा हूँ सर यहाँ पे जो इन्होंने जॉब प्रोफाइल दिया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने फॉर असिस्टेंट मैनेजर, उसमें दो वे में मैं डिवाइड कर सकता हूँ। एक असिस्टेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट कि सब आप प्रोजेक्ट को प्लान एंड कंट्रोल कैसे करेंगे, आप टेंडर कैसे फ्लोट करेंगे, आप सीवीसी के साथ कैसे रिपोर्टिंग करेंगे, आप किसी भी चीज को मेंटेन कैसे करेंगे, वो एक जनरिक तो आ गया जो चाहे सिविल इंजीनियर है, मैकेनिकल इंजीनियर है, वो भी उसी में डील करता है। दूसरा पार्ट आ गया आपके इक्विपमेंट, उसकी मेंटेनेंस, इक्विपमेंट का जो है प्रोक्योरमेंट। तो दूसरा इलेक्ट्रिकल डोमेन आ गया। मेरे को लगता है ये दोनों का कॉम्बिनेशन वो चीज है सर। और तीसरा डोमेन आ जाएगा जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज है। वो हमने देखा पीछे इंट्रोड्यूस गए उसमें भी आया कि साहब आज हम स्मार्ट बिल्डिंग की बात कर रहे हैं, तो हम एफिशिएंसी की बात कर रहे हैं, ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं। वो इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का तीसरा रोल उसमें रवि सर मेरे को लगता आ जाता है। और उसी से रिलेटेड मैं दुष्यंत सर के पास चलूंगा कि जो ये जो टॉपिक दे रखा है दुष्यंत सर, इंप्लीमेंटेशन ऑफ ग्रीन इनिशिएटिव्स लाइक सोलर पैनल, ग्रीन बिल्डिंग्स, इम्प्लीमेंट एनर्जी सेविंग मेजर्स। अब ये सारे के सारा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो हम वैसे भी बच्चों को करवाते हैं, उत्तर प्रदेश के लिए करवा रहे हैं, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए करवा रहे हैं, तो इसका एम्बिट बताओ सर थोड़ा सा। देखो सर, अगर मैं बात करूं आजकल सारा का सारा हम लोग जो ट्रांसफर कर रहे हैं वो ग्रीन एनर्जी की तरफ सोच रहे हैं, क्योंकि फॉसिल फ्यूल कम होते जा रहे हैं, तो हम सोचते हैं कि सारा का सारा ट्रांसफर हमारा ग्रीन एनर्जी की तरफ हो जाए। तो बैंक भी यही चाहता है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट कर जाए। ग्रीन एनर्जी मतलब सोलर पैनल की तरफ। जितनी भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट के लिए रिक्वायरमेंट है, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, वो सारी की सारी हम लोग कहां से पूरी करना स्टार्ट करें? सोलर पैनल से। तो मेनली यही चाहता है कि बैंक हम सोलर पैनल एस्टेब्लिश करे अपने यहाँ पे, उसकी मेंटेनेंस के लिए, उसके लिए हमें बंदे चाहिए जो जिनके पास इस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस हो। तो अगर आपका इस फील्ड से रिलेटेड एक्सपीरियंस है तो आप जरूर यहाँ पे शॉर्टलिस्ट हुए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। ऐसे ही स्मार्ट एनर्जी की बात करें, अगर हम स्मार्ट एनर्जी मतलब मान लीजिए बैंक में कहीं पे लाइट यूज नहीं हो रही, आपको उस लाइट को ऑफ करना है, तो हम क्या है, बंदा वहां लौट के चला गया, उसको ध्यान नहीं रहा, तो वो खुद से ऑफ हो जाए, ऑटोमेशन आ जाए एक तरह से ये कहें। तो हम पूरे बैंक को ऑटोमेट करने का भी ट्राई कर रहे हैं। तो वहां पे किसका रोल आ जाता है? सेंसर और ट्रांसड्यूसर का रोल आ जाएगा। अगर सेंसर आप वहां पे देखो किस टाइप का लाइट सेंसर लगाएंगे, मोशन सेंसर लगाएंगे, बहुत सारा सिक्योरिटी थ्रेट है। मान लो कोई आदमी आपके बैंक में एंटर कर रहा है, तो मूवमेंट कैप्चर करना बहुत सारा, तो ये सारे फैक्टर कहाँ पे आ जाएंगे? सेंसर्स में आ जाएंगे। तो मेन ये चीज रहेगी यहाँ पे, आपको सेंसर और ट्रांसड्यूसर और सोलर पैनल, इससे रिलेटेड आपको बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे होनी चाहिए अगर आप इस फील्ड से। वेरी ट्रू। अच्छा, अब मेरी आप दोनों से भी और अपने से भी एक क्वेश्चन सर कि हम जो बच्चे जा रहे हैं, जो कैंडिडेट्स जा रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं? मतलब कैन वी प्रोवाइड देम सर? रिटन फे में तो हम प्रोवाइड करते ही हैं, क्योंकि इसमें से बहुत से टॉपिक ऐसे हैं जो हम ऑलरेडी करवा चुके हैं या हम करवा सकते हैं। तो क्या हम सर वो रिकॉर्डेड फॉर्म में इनको दे सकते हैं? हाँ सर, ये सबसे बेटर रहेगा, क्योंकि हम लोग पहले भी इनके काफी सारे डॉक्यूमेंट और वीडियोस रिकॉर्ड कर चुके हैं, जैसे सोलर पैनल हो गया, ये तो है हमारे पास, इवन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट पूरा हमारे पास है सर, मैनेजमेंट पड़ा हुआ है, तो बच्चों को प्रोवाइड कर सकते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा उसको यूटिलाइज कर सके और अच्छे से वहां पे प्रिपेयर कर सके।
सारा अवेलेबल है बिल्कुल। और रवि सर ने जैसे बहुत से पॉइंट्स बताए कि साहब ये चीज का नॉलेज होना चाहिए, मतलब कंप्रेस वे में कम टाइम में रिवाइज कर ले। एक तो रिकॉर्डेड फॉर्म में सर, जैसे हम लोग कुछ बता रहे हैं तो उसको वो डॉक्यूमेंट समझ में हेल्प होती है। जैसे आपने जो रिलीज किया सर 70 पेज का एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, डॉक्यूमेंट है और 70 पेज का, डर जाता है कैंडिडेट कि 70 कैसे रिवाइज करेंगे। देखा जाए तो आधे घंटे का काम है सर वो। उसमें मेंटर हम लोग ये बता दें कि साहब ये इंपॉर्टेंट है, इसको करो एंड रिवीजन करने चले जाओ। तो आई थिंक सर हमने मोर और लेस सारा इसको कवर कर लिया। बाकी सीरीज ऑफ वीडियोस हम लोग शेयर कर देंगे। और क्योंकि ये एक्सपीरियंस बेस्ड जॉब है तो नीडलेस टू से कि जो आपका एक्सपीरियंस है वो लिंक होगा आपके इन सारे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ। तो आपने एक्सपीरियंस में क्या किया है और आप कैसे बैंक को आगे ले जा सकते हैं। और इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि सारा इंटरव्यू आपका उस डायरेक्शन में आगे चल पड़ेगा। नीडलेस टू से योरपीडिया सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म एंड आई बिलीव द ओनली प्लेटफॉर्म विच इज मेंटरिंग यू सो मेटिकुलसली ऐसे जॉब रोल्स के लिए। तो अगर आप हमारा वीडियो लकीली देख लें और अगर आपको कॉल आई है तो पहली बात कॉल करें इस नंबर पे जो दे रखा है, सो दैट तैयारी स्टार्ट कर सके। थैंक्स अ लॉट सर फॉर योर टाइम। थैंक यू।